Good afternoon, everyone. I hope you all are doing fine. Today we are doing the session on essay writing. We have taken the topic. मैंने आपको टॉपिक दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे. All ideas having large consequences are always simple. I shared you this topic on the Telegram on Saturday. I hope आप सबने you have written the essay. We'll discuss the blueprint, broad parameter that we could have written. जो जो डायमेंशन हम लिख सकते थे उसका एक दिस इज अ सैंपल मॉडल ऐसे. See, please remember these are some of the pointers. इसके अलावा there can be a lot of things, lot of innovation that you can do in your essay. काफी आप innovatively अपने accordingly आप कर सकते हो. I hope you guys have written the essay. It is very 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 important to practice the essay. Please practice it. I hope you are following this PYQ mains answer writing resolve series. Please, it is very helpful for preparation of mains. This PYQs are the Bible for practicing the answer writing questions. Let's start. First, we'll start with the introduction. Introduction कैसा होना चाहिए? जैसा कि मैंने essay writing session में आपको बताया था. If you have not watched that session, essay how to write an essay, please watch that session first. I told you when you start an essay, you have to start with an anecdote, with a story. So we'll start with a good story of I analyze and first for 20 minutes, for first 5 minutes select the essay, and for next around 15-20 minutes please make the blueprint and then write the essay. All ideas having large consequences are always simple, so we'll discuss it on it. Introduction. A quiet spark that changed the world. How can we introduce within story? In the summer of 1930, a frail elderly man marched 240 miles to Dandi, a coastal village in Gujarat. He bent down, picked up a lump of salt from the shore, and in that simple act, uh, uh, he shook the foundation of the British Empire. That man was none other than Mahatma Gandhi. And the idea he carried, it was a very simple idea. मतलब many people mocked him. What is this form of protest? कि salt you are protesting using salt. पर गांधी was very strategic. उन्होंने कहा ये simple सी चीज is related to masses. ये सबसे related है. तो ये simple thing can revolutionize this movement, freedom movement. So, and the simple idea he carried, civil disobedience through non-violence, was profoundly simple. This idea was very simple, yet capable of igniting a revolution. History is replete with such moments when remarkably uncomplicated ideas born out of clarity and conviction. See, idea simply वो नहीं होना चाहिए, laziness नहीं होना चाहिए, superficial नहीं होना चाहिए, random idea. There should be clarity, conviction. हम daydreaming जैसा नहीं होना चाहिए. Simple ideas does not mean daydreaming. Simple ideas is जिसके लिए काफी clarity हो, conviction हो. Born out of clarity and conviction led to transformative outcomes across human civilization. There has been many transformative outcomes. ये हमने intro दिया है in the body part. We'll explore that idea. फिर intro anecdote story के बाद you have to write transition introduction. मतलब पहले आपने anecdote या story दे दिया, then you have to write transition intro, then you have to move towards the body. तो transition intro में क्या होगा? The statement all ideas having large consequences are always simple is not just philosophical assertion, but an observation validated by time across culture and discipline. ये हमने intro दिया है. We will explain it in the body कि how it across culture discipline ये idea implement हुआ है. This essay explores this assertion through historical event, scientific breakthrough, political revolution, and socio-economic paradigm. दिस इज लाइक अ ट्रेलर. जैसे ट्रेलर आप देखते हो, ट्रेलर में पता हिंट मिल जाती है कि इज इट अ लव स्टोरी या ये एक्शन मूवी है, आपको पता चल जाता है. सिमिलरली दिस इज अ ट्रेलर. You should give the hint कि what are you going to write in the body, what dimension are you going to explore. So we have given the trailer hint. It also critically examines whether simplicity is an absolute precondition. क्या simplicity जरूरी है for impact और merely a facilitator of resonance. क्या simplicity एक factor है या फिर इट इज अ प्री कंडीशन कि ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है किसी भी चीज को लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस होने के लिए. वील एक्सप्लोर इट. तो प्लीज रिमेंबर इंट्रोडक्शन व्हाइल यू आर राइटिंग आप उसे हिंट दे दो बॉडी में क्या आने वाला है, प्लस जनरेट सम क्यूरियोसिटी. जैसे हमने लास्ट लाइन में क्यूरियोसिटी वी हैव जनरेटेड, वी हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इज इट अ एब्सोल्यूट प्री कंडीशन और मेयरली अ फैसिलिटेटर. देन स्टार्ट विद बॉडी. बॉडी में वी कैन राइट सब हेडिंग्स लाइक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन on simplicity. Philosophical foundation क्या थी? Simplicity has long been revered as a virtue in philosophical discourse. हमेशा इसको virtue ही माना गया है philosophical discourse में. Simplicity does not mean superficiality या laziness. हमारा common assumption यही होता है कि simplicity एक superficiality है.
बट सुपरफिशियलिटी नहीं है। आप ऐसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे देयर वाज दिस एसे इन 2020 आई रोट द टॉपिक वाज सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो आई रोट द लाइन इन आवर वेदास एक्सेट्रा इट इज रिटन सादा जीवन उच्च विचार। तो दिस इज द एसेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन कि सादा सिंपल सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, दिस इज द एसेंस। तो सिंप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि यू हैव टू लिव सिंपल लाइफ, बट सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं यू हैव टू बी लेजी डूइंग नथिंग। Simplicity means you are engaging more, giving more time to clarity, thinking high ideas. That is important. Then it refers to deinstillation of complexity into a form that is comprehensible and implementable. मतलब simple ideas को ऐसे break करना है कि जो easy to implement हो, easy to understand हो. Ideas that can be grasped easily tend to be remembered, easily remembered, shared, and practically practiced widely. It should be able to practice. अगर आप इतने टफ आइडियाज रखते होगे वो इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। वी मेक सो मेनी प्लान्स पर व्हाई वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, यू मेक इनिशियली यू मेक टाइम टेबल विच इज अनरियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट इफ यू ब्रेक डाउन द टाइम टेबल सिंपल, तो इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड विल हैव लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या? आपका सिलेक्शन। देन सोक्रेटिस ने भी सेम टॉट बाय आस्किंग क्वेश्चन। सोक्रेटिस का मेथड था डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स में क्या आप जो भी बोलोगे सोक्रेटिस पे क्वेश्चन करता था, क्वेश्चन एंड काउंटर क्वेश्चन। बुद्धा प्रीच टू मिडिल पाथ, दिस वाज अ सिंपल आइडिया, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। ये अभी भी इंप्लीमेंट होता है कि यू हैव टू, फॉर एग्जांपल इंडिया का नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, इट्स अ सिंपल आइडिया, मध्यम मार्ग। इसका लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस होता है कि इंडिया कैन हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर। देन क्राइस्ट स्पोक इन पैराबल। क्राइस्ट थे वो भी स्टोरीज की फॉर्म में बताते थे, सिंपल स्टोरीज। देयर टीचिंग्स एंड्योर नॉट बिकॉज दे वर कॉम्प्लेक्स। उनकी टीचिंग आज भी हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ पाते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं, बट बिकॉज दे वर सिंपल एनफ टू टच हार्ट्स। सिंप्लिसिटी लोगों के दिलों को टच करती है, सिंप्लिसिटी लोगों को समझ आती है। इट्स समथिंग वी आर एबल टू इंटरलाइज, वी आर एबल टू एब्जॉर्ब एंड अंडरस्टैंड। जब आप टफ एंड माइंड अक्रॉस मिलेनिया, अगर इम्पैक्ट उसका ज्यादा रहता है जो सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी टीचर्स इन यूपीएससी इंडस्ट्री। वो काफी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर वो टफ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वी विल बिकम इंटेलिजेंट एंड वी आर एबल टू क्लियर यूपीएससी। हमारा काफी लोगों का परसेप्शन होता है, परसेप्शन इज कि यूपीएससी इज अ वेरी टफ एग्जाम एंड वी हैव टू स्टडी वेरी टफ थिंग्स एंड टीचर्स दैट आर टीचिंग टफ थिंग्स, कॉम्प्लेक्स थिंग्स, मैकेनिकल थिंग्स, बहुत लंबा लंबा बहुत सारा ओवर डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रहे हैं, तो वो सक्सेस के लिए जरूरी है। नहीं, ये होता आपके साथ उल्टा है। जो टीचर सिंपल आइडियाज में सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, टू द पॉइंट रख रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो, आपको थीसिस नहीं करनी है, वो आप सिलेक्शन के होने के बाद करिएगा, बट वो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत सिंपल आइडियाज को ब्रेक करके, ज्यादा अननेसेसरी स्टफ नहीं पढ़ा रहे, मैकेनिकल नहीं पढ़ा रहे, इंप्लीमेंटेशन सिखा रहे हैं कि आप टॉपिक पढ़ना, उसको टॉपिक को कैसे आप आंसर में लिख सकते हैं, वो ज्यादा सक्सेस होता है रादर देन कॉम्प्लेक्स आइडियाज। कॉम्प्लेक्स आइडिया मैकेनिकल पढ़ाने से क्लैरिटी की बजाय नॉन क्लैरिटी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी कम होती है तब कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल पढ़ने से। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी दे सकते हो ऑफ सिंपल आइडियाज दैट चेंज द वर्ल्ड। हिस्टोरिकल एग्जांपल कैसे? गांधी की फिलोसफी, अहिंसा, सत्याग्रह, इसने इट डिड नॉट रिक्वायर इलेबोरेट थ्योरम्स और मैनिफेस्टो, इसको इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी। दे ओनली रिक्वायर्ड मॉरल करेज एंड डिसिप्लिन। सिंपल आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं, ऑल इट रिक्वायर्स इज करेज एंड डिसिप्लिन। अगर आप अभी भी, सिंपल आइडिया है यूपीएससी को क्लियर करना, इट इज अ वेरी सिंपल आइडिया, इसके लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस होंगे आपका सिलेक्शन, बट आपको फॉलो क्या करना है? डिसिप्लिन एंड मॉरल करेज। मॉरल करेज क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अननेसेसरी चैनल्स हैं, जैसे मतलब बहुत ही अब नाम नहीं ले सकता, उल्टे सीधे चैनल्स, सोल्जर्स, डॉक्टर, मेंटोर, रैंडम नेम्स के साथ, ऑल देयर प्लेलिस्ट विल बी फिल विद 100% यूपीएससी पोस्टपोन ड्यूरिंग अभी जो वो इंडिया पाकिस्तान का इशू हुआ था, 100% पोस्टपोन, उनकी प्लेलिस्ट इसी से भरी होगी। प्रीलिम्स एंजाइटी, प्रीलिम्स एंजाइटी, प्लीज अगर ऐसे जितने भी चैनल्स हैं अभी तक जो प्रीलिम्स की एंजाइटी लेकर वीडियोस बना रहे हैं, वो सिर्फ व्यूज के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली के लिए वो क्लिकबेट होते हैं, यू विल क्लिक इट। अगर वो थंबनेल में डालेंगे या फिर टाइटल डालेंगे प्रीलिम्स एंजाइटी एंड ऑल, यू विल क्लिक इट, बट यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। उनको पैसे कमाने, उनको मिल जाएंगे, बट टाइम आपका वेस्ट होगा। सो प्लीज बी केयरफुल, have the moral courage ki not to click on those clickbaits. So you guys need to have moral courage or not clicking on those clickbaits and have discipline. Discipline क्या? Practice करनी है, revision करना है. They were accessible to the common Indian and thus mobilized millions. So इस तरह से it was able to mobilize million, क्योंकि वो आइडिया बहुत सिंपल थे, लोग रिलेट कर पाते थे, मासेस रिलेट कर पाते थे। उनसे पहले जो कांग्रेस थी, गांधी के आने से पहले, they were very academic
इतना वो मास से कनेक्ट नहीं हो पाया। गांधी के सिंपल आइडिया की वजह से वो जो फ्रीडम मूवमेंट था वो नेशनल मूवमेंट बन पाया। देन अमेरिकन वॉर ऑफ डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस, उनका आइडिया बहुत फ्रेज पॉपुलर था, ऑल मैन एंड क्रिएटेड इक्वल। इट इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट अमेरिकन इंडिपेंडेंस बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये थ्री सिंपल वर्ड्स डिसमेंटल्ड सेंचुरीज ऑफ एरिस्टोक्रेसी। इतने टाइम से जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो मोनार्कियल रूल था, उसको डिसमेंटल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एंड स्टैब्लिश मॉडर्न आइडिया ऑफ रिपब्लिक। मॉडर्न आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन्हीं थ्री वर्ड से आया। देन मार्टिन लूथर किंग का बहुत फेमस स्पीच है, हिज ड्रीम ऑफ चिल्ड्रन नॉट जस्ट बाय द कलर ऑफ द स्किन। यू हैव टू राइट सच इंटरेस्टिंग पोएटिक वर्ड्स एंड लाइन्स। was a simple aspiration कि his dream of children not just by the color of their skin but one that shook the conscience of the nation। इसने पूरे अमेरिका को मोबिलाइज किया। अमेरिका क्या और भी कंट्रीज ने काफी इंस्पिरेशन ली फाइटिंग अगेंस्ट रेसिज्म एंड ऑल, एंड चेंज द कोर्स ऑफ सिविल राइट्स लेजिस्लेशन। इनके मार्टिन लूथर के एफर्ट से ही सिविल राइट्स इक्वालिटी अमेरिका में और ज्यादा मूवमेंट वे फॉरवर्ड हुआ। These were not abstract principles debated in ivory tower, वो ivory tower वाले principles नहीं थे, but truth framed in simple language। These were truthful, honest ideas, बहुत simple language में बताया गया। मतलब name any leader जिसने tough language में movement चलाया और वो successful हुआ हो, नहीं। जो basic simple ideas से preach करते हैं लोगों को, वो ही connect हो पाते हैं। जो tough, जो intelligent हैं, पर वो simplicity से explain नहीं करते, simple ideas explain नहीं करते, तो people are not able to connect। वो सोचते हैं कि intelligent बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज को नरेट करते हैं, तो पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू इट। देन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल आइडिया, सिंपल इन फॉर्म एंड डीप इन इम्पैक्ट। ऐसे साइंटिफिक आइडियाज भी हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन का देयर इज एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, सिंपल आइडिया बट इट हैज मासिव इम्पैक्ट, लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस। 3 उनकी इक्वेशन इसी से आई है, तो सिंपल आइडिया के ऐसे लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस हुए हैं। ऐसे ही आइंस्टाइन का E = mc स्क्वायर, वन इक्वेशन जस्ट 5 सिंबल्स, unlocking revolutionized physics, unlocking the door to nuclear energy and nuclear weapons। मतलब ये किसी ने सोचा था कि just these 5 symbols can make such a deep impact। Then internet protocol, the idea that all data can be broken into packets and reassembled was deceptively simple। इसका भी इतना massive impact हुआ communication, commerce, culture, हर चीज में। ये idea simple। Similarly वैक्सीन का idea क्या है? Introducing a weakened form of virus can prevent डिजीज इज इंट्यूटिव। मतलब एडवर्ड जेनर था, उसने काउ के साथ काउपॉक्स वैक्सीन बनाई थी। उसने जो काउमेड्स हैं उनको बस ऑब्जर्व किया था, उनको ऑब्जर्व करके ही नोटिस कि व्हाई दे आर नॉट गेटिंग दैट डिजीज, तो उनको आइडिया आया कि कैसे वैक्सीनेट किया जा सकता है। इट इज अ वेरी सिंपल आइडिया। सिमिलरली आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ही वाज इन हिज वॉशरूम, तब उन्हें वो बाथटब में वो आइडिया आया कि पानी को निकाल सकते तो इतना वेटेज हो सकता है। दीज आर सिंपल आइडियाज। वो इतनी सिंपल आइडिया से ऑब्जर्वेशन से आए हैं। तो सिंपल आइडियाज कब आपको आते हैं? जब आप यू आर प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो यू हैव टू राइट सच थिंग कि वो सिंपल आइडियाज की एग्जांपल दे दिए, बट यू हैव टू एक्सप्लेन थ्योरेटिकली, आपको बताने कि वो सिंपल आइडियाज कब आते हैं? जब आप में कन्विक्शन हो, व्हेन यू आर प्रेजेंट इन रियलिटी। जब आप डे ड्रीमिंग करोगे या ओवर एंशियस रहोगे तो आइडियाज नहीं आएंगे। अभी भी इफ यू स्टे काम, बी इन द मोमेंट, यू विल आल्सो गेट सिंपल आइडिया दैट कैन हैव लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। देन सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिंपल आइडियाज का क्या रोल हुआ है? डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट, this simple electoral principle redefined governance। then universal basic income, ये भी this is a very simple idea कि सबको basic minimum income होनी चाहिए। इसकी वजह से काफी deep impact रहा है। then ग्रामीण बैंक, मोहम्मद यूनुस की ग्रामीण बैंक। what is a ग्रामीण बैंक? कि जो small वो है farmers हैं या poor people हैं, जितने भी उनके पास collateral नहीं होता and they are not able to take loans, तो he revolutionized based on the trust के बेसिस पर, विदाउट टेकिंग कोलेटरल बिना लिए, ही प्रोवाइडेड लोन्स, एंड बांग्लादेश का मासिव डेवलपमेंट इस ग्रामीण बैंक से हुआ है। सो सिंपल आइडिया, बहुत ही सिंपल, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन इट कि पुअर को लोन देना विदाउट टेकिंग कोलेटरल, इज द बेसिक सिंपल आइडिया। बट औरों ने प्रैक्टिस नहीं करा ना, इवन ओनली मोहम्मद यूनुस डिड इट, उसका डीप लास्टिंग इंपैक्ट हुआ। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। कन्विक्शन सिर्फ आइडिया सिंपल होने से नहीं होता, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट आइडिया, तभी उसका लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस होता है। तो यू हैव टू राइट द सच थ्योरेटिकल डायमेंशन, थ्योरी लिखनी है कि आपको सिंपल आइडिया सिर्फ सोचना नहीं है, यू हैव टू इंप्लीमेंट इट, तभी उसका लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। देन सिमिलरली एसडीजी गोल्स, सिंपल आइडिया है, इसका लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस कब होगा? व्हेन वी आर इंप्लीमेंटिंग ऑल दोस 18 गोल्स। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर का बहुत फेमस सिंपल आइडिया है, सबका साथ सबका विकास, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। These are simple ideas that can have lasting consequences. Then why simple ideas have large consequences? You have to analyze also, क्योंकि accessibility होती है।
Such ideas are simple to understand, recall and spread. It is likely to gain traction among the masses. Simple ideas को ही accessible होंगे. Then universality. Simple ideas transcend language, culture and class. मार्टिन लूथर किंग का मूवमेंट वो बहुत सिंपल था. अमेरिका ही नहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड में वो हुआ इम्पैक्ट. सिमिलरली गांधी जी का भी इम्पैक्ट, नेल्सन मंडेला का. इनके आइडियाज का इम्पैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इट वाज सिंपल. इनका यूनिवर्सैलिटी थी, लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज, कल्चर रिलेटेबिलिटी थी. देन इम्प्लीमेंटेबिलिटी, इम्प्लीमेंट भी इजीली हो सकते हैं. सिंप्लिसिटी अलाउज फॉर डायरेक्ट ट्रांसलेशन इनटू एक्शन, वेदर इट इज वोटिंग, फॉलोइंग अ लॉ और प्रोटेस्टिंग पीसफुली. मार्टिन लूथर किंग का आइडिया बहुत इजीली इंप्लीमेंटेबल था. अगर गांधी जी टफ आइडिया देते तो वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता. उनका आइडिया बहुत बेसिक था, दैट यू हैव टू गो टू द शोर्स और सॉल्ट पिकअप करनी है. इजी टू इंप्लीमेंट, इसलिए लोग कनेक्ट हो पाए, लोग फॉलो कर पाए, इंप्लीमेंट हो पाया. अगर वो टफ आइडिया दे देते कि ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, अब बहुत सारे इंडिया में मिलिटेंट मूवमेंट है, वो क्यों वर्क नहीं करे? क्योंकि उनकी बहुत मासिव प्लानिंग चाहिए थी. उनका भी इम्पैक्ट था, बट उनको इतना मासेस से इतना कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाए, नेशनल मूवमेंट में पार्ट मतलब बन नहीं पाए नेशनल मूवमेंट, क्योंकि वो गदर मूवमेंट था. हमेशा ब्रिटिशर्स इंटरसेप्ट कर लेते थे. कॉम्प्लेक्स आइडिया होते थे, पकड़े जाते थे, मासेस से कनेक्ट नहीं होते थे. पर गांधी जी के सिंपल सिंपल आइडियाज की सॉल्व उठाना, दीज वर वेरी सिंपल आइडियाज, पीपल वर एबल टू रिलेट इट और पीपल पार्टिसिपेट कर पाए. अब मिलिटेंट वो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपने थोड़े वायलेंट मीन्स अडॉप्ट किए थे, वो हर कोई तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना. वो सिर्फ एक लिमिटेड करेजियस पीपल ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. देवर करेजियस पीपल आर फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने ये करी, पर वो रिलेट नहीं कर पाए, वो मासेस इंप्लीमेंट नहीं कर सकता. वो सिर्फ एक कुछ सेलेक्टेड करेजियस लोग इंप्लीमेंट कर पाए. देन मॉरल फोर्स होता है उनमें. क्लैरिटी ऑफ पर्पस ऑफन ट्रांसलेट इनटू मॉरल अथॉरिटी. अ सिंपल आइडिया व्हेन रूटेड इन जस्टिस कैरीज परसुएसिव पावर. गांधी जी को जो सिंपल आइडियाज थे, दोज वर बेस्ड ऑन जस्टिस, इसलिए उनकी परसुएसिव पावर थी. ब्रिटिशर्स भी परसुएटेड हुए थे टू लीव इंडिया. देन देयर इज काउंटर व्यू आल्सो. आर ऑल बिग आइडिया सिंपल? क्या सारे आइडियाज सिंपल, जिन भी आइडियाज का लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, क्या सभी सिंपल होते हैं? वील स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स या क्लाइमेट चेंज के जो मॉडल होते हैं, क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, जिसमें सिमुलेशन वगैरह होता है, क्वांटम मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं. इनको समझने के लिए एडवांस ट्रेनिंग चाहिए, आपको मैथमेटिकल टूल्स चाहिए. हाउएवर, बट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ्टन डिसइंस्टिल सिंपल ट्रुथ. बट इन आइडियाज के अंदर भी सिंपल ट्रुथ होते हैं, भले ही ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स है, उसका सिंपल आइडिया कि एनर्जी को क्वांटाइज करना है. क्लाइमेट चेंज है, इसका भी सिंपल आइडिया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज कर रही हैं और अर्थ को वार्म कर रही हैं. एआई का भी सिंपल आइडिया है कि एआई कैन लर्न फ्रॉम डेटा. उनका ये टफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एआई, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लाइमेट चेंज, बट उनका जो कॉन्सेप्ट होता है एट इट्स कोर, दीज आर वेरी सिंपल आइडिया. कोर में सिंपल है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, बट उनका एसेंस सिंपल ट्रुथ से ही आया है. सो व्हाइल द इम्प्लीकेशन मे बी कॉम्प्लेक्स, the foundational ideas are often elegant and minimalistic. The counterpoint actually reinforces the thesis that complex system often rest on simple powerful idea. So ये complex ideas भी simple ideas पे based होते हैं. Then Indian civilization wisdom, simple yet profound. Indian ideas क्या क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो. सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ इज, यू कैन राइट इन हिंदी, ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो, बट हिंदी स्क्रिप्ट में नहीं लिखना है. जैसे सत्यम शिवम, ये यू डोंट हैव टू राइट सच, मतलब ऐसा लिखना है, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ इज डिवाइन एंड ब्यूटीफुल, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट ड्यूटी. दीज आर सिंपल आइडियाज, येट उनका बहुत डीप इम्पैक्ट, लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है. मतलब ये सारे आइडियाज नहीं ही हमारे जो इंडिया इज अ ग्रेट पावर, इसको ही इंस्पायर इन सारे सिंपल आइडियाज ने किया है. सी दीज आर जस्ट नॉट जस्ट पोएटिक लाइन, दीज आर अ सिविलाइजेशनल कॉर्नरस्टोन. ये कीवर्ड्स आपको ऐसे यूज करने हैं. दे हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिसी इन फॉरेन पॉलिसी, जैसे नॉन अलाइनमेंट, कम्युनल हार्मनी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये सारे इम्पैक्ट वो करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्ड इंस्टिल्ड कॉम्प्लेक्स आइडिया इनटू सिंपल फ्रेजेस. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिंपल आइडियाज हैं. रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, क्या इन सिंपल आइडियाज की हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वैल्यू है? इज इट रेलेवेंट फॉर आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? हम अभी काफी डिजिटल एज में रह रहे हैं. व्हेन वी आर ओवरलोडेड विद सो मच इन्फॉर्मेशन, आज हमारे पास वी आर सराउंडेड विद सो मच इन्फॉर्मेशन, द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी इज इवन मोर प्रोनाउंस्ड. इतने कॉम्प्लेक्स टफ आइडियाज, इतनी इन्फॉर्मेशन से वी आर सराउंडेड, तो सिंप्लिसिटी की वैल्यू और बढ़ जाती है. कैसे? ब्लैक लाइव्स मैटर, दिस बिकेम अ ग्लोबल मूवमेंट. दिस थ्री सिंपल वर्ड्स. मी टू, इसने भी ग्लोबल सेक्सुअल हैरेसमेंट पे इट रेज द वॉइस और एक्शंस लिए गए.
देन डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. दीज आर बेसिक सिंपल आइडियाज, इनका इम्पैक्ट बहुत लास्टिंग रहा है. Even in corporate branding और public campaign, clarity and simplicity will win hard. Corporate जो brands होते हैं वो भी simple ideas ही रखते हैं. कोई भी आप popular brand देखोगे, we are loving it मैकडोनाल्ड का, या फिर Apple का think different, स्टीव जॉब्स का stay hungry, stay foolish. These are simple ideas. Simple ideas वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि people, everyone, the mass will be able to relate to it. अगर वो complex idea रखेंगे, fancy idea रखेंगे, जैसे मैंने यूपीएससी टीचर्स की तरह मैकेनिकल पढ़ाएंगे सोच के कि दे आर टीचिंग मतलब गुड, इतना टफ पढ़ाकर इट वोंट वर्क. जितना आप सिंपल रखोगे उतना इट विल बी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड लर्न. इसलिए मैं बोलता हूँ स्टिक टू बेसिक सोर्सेज एंड लर्न एंड रिवाइज. जितना आप सिंपल सोर्सेज पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, वाई शुभ्ररंजन फेमस अनलाइक अदर टीचर. जो बाकी के टीचर्स होते हैं वो अदर यूपीएससी टीचर्स की तरह कॉम्प्लेक्स ओवर डिटेल पढ़ाते हैं. शुभ्ररंजन टू द पॉइंट, एंड इसलिए टीना ढाबी, तुषार जो आईपीएस ऑफिसर है, उनके सारे इतने स्टूडेंट्स उनसे निकले हैं क्योंकि वो सिंपल बेसिक आइडियाज में एक्सप्लेन करती हैं. पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड के अलावा इट्स इजी टू ऑब्जर्व. काफी टीचर कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाते हैं. जीएस के सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं 1 2 3 4, वो कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाते हैं. शुरू में समझ आ जाएगा जब वो एक्सप्लेन करेंगे, बट यू आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब. आप समझ नहीं पाओगे, आप समझ लोगे बट एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे. एब्जॉर्ब कैसे कि मतलब दिल और दिमाग तक आपके बैठ जाए और एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर पाओ, वो करना टफ होगा. देन मिनिमलिज्म एज अ लाइफस्टाइल. आजकल देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स मिनिमलिस्टिक क्या? ओन लेस लिव मोर. हर चीज में मिनिमलिज्म, खाने में, अपने ड्रेस सेंस में, हाउस स्ट्रक्चर में, कि मिनिमलिस्टिक चीजें, कम चीजों में कैसे स्मॉल जो कम चीजें कैसे ब्यूटीफुल रहें. ओन लेस लिव मोर is a modern example of simple idea causing psychological, economic and environmental shift. इससे पोल्यूशन बच रहा है, मटेरियलिज्म कम हो रहा है मिनिमलिस्टिक आइडियाज में. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मिनिमलिज्म उसमें इंडिविजुअलिज्म में या मटेरियलिज्म के अगेंस्ट में. देन क्रिटिकल एनालिसिस. द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी लाइज इन इट डेप्थ. जो सिंप्लिसिटी का जो वैल्यू है वो उसकी डेप्थनेस में है. सिंप्लिसिटी कैन नॉट बी मिस्टेकन एज शैलोनेस या लेजीनेस. सिंप्लिसिटी का मतलब शैलो आइडियाज या लेजीनेस नहीं होता. द बेस्ट आइडियाज आर नॉट सिंपलिस्टिक, दे आर रिड्यूस्ड टू एसेंशियल विदाउट लूजिंग मीनिंग. यानी बेसिक आइडियाज होते हैं वो. Indeed, the simplicity of an idea is often result of enormous intellectual work. सिंपल आइडियाज ऐसे बैठे बैठे दिन में डे ड्रीमिंग से नहीं होता, उसके लिए काफी इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, एम्पैथी चाहिए होती है, मॉरल क्लैरिटी होनी चाहिए. सिंपल आइडियाज काफी अच्छे मतलब कॉम्प्लेक्स और जिनकी सोल बहुत डेप्थ में होती है उनको ही आ सकते हैं, जिनका मॉरल कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होता है. गांधीज नॉन वायलेंस वाज नॉट अ नाइव पैसिविज्म. जो नॉन वायलेंस है इसका मतलब यही नहीं कि बहुत लेजी थे, गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने आउट ऑफ लेजीनेस अनविलिंग टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, बस इसलिए सिंपल आइडिया नहीं दिया था नॉन वायलेंस का. इट वाज अ स्ट्रेटेजी होल्ड ओवर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल. उनकी गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी नॉन वायलेंस के लिए, क्योंकि अगर हम नॉन वायलेंट रहेंगे तो ब्रिटिशर्स के अगर हम पे वायलेंस करेंगे तो उनको वर्ल्ड में दे विल बी बैड नेम फॉर ब्रिटिशर्स कि दे आर यूजिंग वायलेंस टुवर्ड्स सच पीसफुल प्रोटेस्टर्स. तो ब्रिटिशर्स वोंट बी एबल टू मतलब कम डाउन हेविली ऑन इंडियन प्रोटेस्टर्स फॉर लॉन्ग टाइम. अगर इंडियन भी लोग अगर वायलेंट तरीका अडॉप्ट करते तो ब्रिटिशर्स और वायलेंट होकर प्रोटेस्ट को कर्ब कर देते, जिससे मूवमेंट फिनिश हो जाता और पीपल वोंट बी एबल टू राइज अगेन. पर अगर हम नॉन वायलेंट है, विल बी एबल टू राइज अगेन. ब्रिटिशर्स हमें वो इतने अनाम पे कब तक वो अटैक करेंगे, तो ब्रिटिशर्स विल हैव टू एक्सेप्ट आवर डिमांड्स. तो इट वाज अ स्ट्रेटेजिक आइडिया. Einstein's relativity was not discovered in a flash, but deinstilled after years of complex mathematical. Equal to mc square बहुत basic 5 symbol लगता है, but उसके लिए भी Einstein has worked for a long time. Then conclusion, from clarity to consequence. You can use such keywords, ऐसे subheading you can give. To sum up, हिस्ट्री साइंस कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन शुड हैव द एसेंस. आपने जितना भी इंट्रो बॉडी में जो एक्सप्लेन किया उसका एसेंस होना चाहिए, और लास्ट में रिटोरिकल मतलब हाई साउंडिंग वर्ड्स वाला कंक्लूजन होना चाहिए. टू सम अप, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर आर ऑल अबंडेंट एविडेंस दैट आइडियाज विद ट्रांसफॉर्मेटिव पावर आर ऑफन सिंपल. ये हमने पढ़ लिए, सारे एग्जांपल दिए हिस्ट्री के. देयर स्ट्रेंथ लाइज इन बीइंग यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल. इजी होना चाहिए, सबको समझ आना चाहिए. मॉरली इंट्यूटिव एंड प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल होना चाहिए. ऐसे आइडियाज होने चाहिए सिंपल, तभी वो लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस होगा. वेदर इट इज अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू और स्पिरिचुअल इंसाइट, इट रेजोनेट वाइडली एंड एंड्योर्स डीपली. इट इज लाइकली टू बी रूटेड इन सिंप्लिसिटी. जितने भी ऐसे आइडियाज होते हैं
साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होते हैं, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होते हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि दे आर रूटेड इन सिंप्लिसिटी। लास्ट वाला पहला रेटोरिकल होना चाहिए, मतलब काफी लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ दे रीडर के माइंड पर। In a world besieged by complexity, climate crisis we are facing, technological disruption, moral dilemmas, it is the return to simple truth that often guides humanity forward. Currently, we are facing so many issues: technological disruption, wars, digital age, climate crisis. ये आज we need the importance of simplicity has increased even more. Truth matters, compassion matters, justice matters. ऐसे rhetorical quote or lines do you need to write? These are not complex ideas. ये truth, compassion, justice, ये complex ideas नहीं है. These are simple ideas, but they shape the most important choices we make. They are shaping our life. These simple ideas are shaping us, our life, our thought process, what we do. So this is the essence. I hope आपको ये समझ आया होगा. बाद में मैंने फॉर्मल ऐसे कैसे लिखना चाहिए पूरा I have written, and I'll share the PDF in the Telegram group. If you have not joined the Telegram group, please, that link will be in the description. My mail will also be in the description. If you are facing any issue, any suggestion you have, feel free to ask or give any suggestion. Please like, share, and subscribe if you have liked the session. We'll meet in the next session. Please follow it. All the best.